So we are now 18 members strong. Do we start sharing of what assignments we did yesterday, how we felt, कैसा लगा सबको, और सबने किया ना अपने photographs के साथ assignments? Yes. Yeah, what did we, if anyone made any notes, क्या लिखा, क्या points did you learn yesterday? Let us revise. नहीं तो हम आगे बढ़ते जाएंगे and थोड़ा सा revise हो जाए ना कि what did we actually learn? किसी ने कोई भी एक दो पॉइंट भी लिखा हो या मन में याद हो कल मैजिकल रिलेशनशिप्स में व्हाट डिड वी लर्न? Ma'am, I have write for my relationship regarding my mother-in-law. I write for something, some points, and say give the gratitude also. Can I read or can I share them? You can quickly read for one person at least. Okay. Thank you, Ma, for helping me so too much in household work. Thank you. You care of all the person, what they need, what other need. Thank you, Ma. You are so nicely. When you say beta. Talk when you say beta. Thank you, Ma. You care of others. Thank you, Ma. You remember all the person's birthday. I love you, Ma. You are so nice heart. Thank you, Ma. Thank you, Ma. Thank you, Ma. Thank you, Ma. Very nicely written. Very nicely written. And did you feel any change when you wrote about her? What did you feel inside? Yeah, little bit. I am feeling inside also that I am gratitude and loving started to more love. Previous I love also, but sometimes the in home some what I say Phat ho jati. like that. So, but now I'm calm. I'm calm when because she's aged. Sometimes she talk any other things or tell to me directly, but I didn't mind. I leave that time place. After that, sometime I come back and ask what happened. What do you need? You tell me. I can do everything for you. Very nice. That was very sweet. Thank you. Anybody else would like? And I told to my son also, he's 10-year-old, that if you say the thank you, your God is given everything, universe is given everything. Because day before, no, yesterday, his birthday, 10th birthday, then he didn't give anything to any person till night, because in night he is cutting the cake. For that he got the gift from the neighbors. We didn't give anything, but he got the one gift, family pack Cadbury chocolate. Someone given, some other given chocolate, someone given money, someone given other persons given. I said, say thank you every time, say morning to night, say thank you, thank you, thank you. See, the universe has given you so much things in your study, in your life, in your gift, everything. They got the gift from the Dada also. They got the gift from Dadi. They got the gift from the father also. So I am So start to beautiful. learning my son also. If we can teach our children at this age, ना उनका life तो 100% transform हो जाएगा. And from last 1 week, I and my son, when I'm going to take in the school, he and me also watching the angels number. He's showing me, Mama, see 444, Mama, see 111, Mama, see 333 is there. You told me that angels number, and every time he got the money from anyone, and he get the angels number in the note also. Wow. कोई और शेयरिंग करना चाहेगा? कल उन्होंने कोई नोट बनाया, कल उन्होंने अपने लिए कुछ लिखा कि ये टेक अवे था मेरा सेशन से, या फिर अपने लिए अपने 3 रिलेशनशिप्स के लिए उन्होंने ग्रैटिट्यूड लिखा, तो व्हाट फीलिंग्स डिड दे हैव, what was the difference they found? Ma'am, I've written something. Yeah, please sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon.
Love, gratitude, joy, passion, excitement, enthusiasm, hope, satisfaction. These are the feelings. You always need to be in above feelings. Always be above the line. Never have these feelings of boredom, irritation, disappointment, worry, anger, hate, envy, guilty, despair, fear, and criticism. In case you're below the line, start giving gratitude for anything at that time. If your relationships are good, your health is very good, lifespan will be very high. Gratitude with relationships will create magic in relationship. One complaint is equal to 10 blessings. Stop complaining about mates and family people. We are really alive when we are in gratitude for all our blessings. Stop criticizing people. Don't try to change people. Just accept them and love them as they are. Accept them as they are, not also accept them for what they are not also. Stop judging and start loving everybody. Thank you, ma'am. Wow. Very ये nice. समरी सुन के लगता है ना चैप्टर फिर से रिवाइज हो गया. एक्चुअली नो मैम, इस बार लग रहा है लिखो ना, वो बहुत ज्यादा दिमाग में बैठता है मालूम. अदरवाइज इट इज जस्ट इट गेट्स इन एंड अगेन इट गेट्स आउट. लिखने में यू नो एवरीथिंग. अभी जैसे मैंने फीलिंग्स वो चार्ट है, बट व्हेन आई हैव रिटन इट इज आई एवरीथिंग गोज इनटू माय माइंड कि लव, ग्रैटिट्यूड, जॉय, पैशन सब होना चाहिए. जो नहीं होना चाहिए दैट इज आल्सो क्लियर. थैंक यू मैम. तो किसका किसका रजिस्टर डायरी पेन नहीं है? नाउ आफ्टर शीतल सेइंग दिस, एवरीवन्स डायरी शुड बी आउट, राइट? ऑल योर पेन्स एंड नोटबुक शुड बी आउट टुडे. So I see our reader Parul ji. Welcome Parul ji. आज आप reader हो. welcome. So we start with the peak state. Yes. Yes, everybody, let's do the quick peak state. Let's come into our energies. Why we do the peak state? We begin to train our mind, okay, to be successful. So let's think about our dreams which we want to achieve and let's run towards it. That reminds me, sabka dream list. Please work on your dream list. We'll get it soon there. With the right leg forward, thrust. Faster, faster. Yes, I can do it. I am reaching my goal. Faster. Yes, yes. Yes, I'm the winner. I am the winner. Yes. Okay, with the other foot forward. Faster. Run, run, run. Run, 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 run faster. I can do it. I am reaching my goal. Yes. Yes. I am the I am the winner. Everyone seated with your back straight, spine straight होने से ना learning बहुत अच्छी होती है. Everything goes straight in. There's a lot of science behind it. So let's have your spine straight. अपनी सांस को धीरे करके just take one long deep breath in. And release it out. धीरे धीरे बाहर कर दे. फिर एक लंबी सांस अंदर लें. पेट बाहर. Hold your breath. And धीरे 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 से छोड़ दे उसको. बहुत शुक्राना इस हवा के लिए. एक लास्ट टाइम. सांस को धीरे धीरे अंदर और धीरे धीरे बाहर. थैंक यू एयर.
Thank you, oxygen. Thank you. हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमें इस सेशन में लेकर आए हैं। हमें पता है, हमें सिखाया जा रहा है कि हम यहाँ खुद नहीं आते हैं। आपको लगा कि अब हम तैयार हैं यहाँ आने के लिए, आपने हमें यहाँ लाया। थैंक यू कि आपने हमें इस काबिल समझा। थैंक यू। यहाँ जो भी हम सीख रहे हैं उस पे हम अमल कर पा रहे हैं, उसको लाइफ में प्रैक्टिस में ला पा रहे हैं। थैंक यू। हम जो भी आज सीखेंगे, आज हेल्थ का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि हम हमारी हेल्थ में इस फॉर्मूला से फायदा करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से रिसेप्टिव है सीखने के लिए। थैंक यू। Subham, are you in a position to share about your gratitude rock? Yes or no? If not, we'll have it another day. Yes, I am, ma'am. I think I can share, yeah. Thank you. So I met Subham today and he did an amazing sharing with me. So clearly, please batao what happened. Yeah, so I've been listening to the sessions while I'm at work. So I'm not being able to participate fully, but it's very enriching for me regardless. I had to go to this wedding during the weekend because of which I missed my class, my session rather. And this was on my mind continuously. I was regretting it that why am I missing out? So I go to the wedding and it's a friend's wedding. So I meet the groom's other friend and I really appreciate the guy. And within 2 minutes of conversation, he brings out a rock from his pocket and he tells me, it's a gratitude rock. Do you know about it? And I said, no. And then he tells me, have you read The Magic or have you read The Secret? And that's when I thought that, okay, it's really coming to me. I really have to do this for myself. So yeah, that. Wow, until this weekend की बात है, हाँ, अपने सेशंस मंडे को शुरू हुए थे, किताब मंडे को शुरू हुआ था, तब तक ग्रेटिट्यूड रॉक के बारे में इनको कुछ नहीं पता था. So यूनिवर्स का सिग्नल दैट इट कम्स टू अस, ये किताब यूनिवर्स लेके आती है हमारे पास. एंड इन्होंने सिर्फ सीक्रेट मूवी अटेंड की थी जब तक. So can you imagine? I was stunned when he told me this. Thanks so much, Subham, for sharing this. Thank you, ma'am. This incident has reinstated your belief in magic and the universe and the secret. आपको अब अंदर से फील होगा कि आप असाइनमेंट्स करो, आप इसमें बिलीफ आपका, it's actually कुछ सामने से दिखता है ना होते हुए. That's when our belief actually solidifies. So we come to day 4. Today's chapter is magical health. And our reader today is Parulji. Parulji, are you there? Parulji, can you unmute yourself? Yes, ma'am. Yeah, thank you so much for choosing to read today for yourself. Thank you so much, and for all of us. So till now, what we have done is we have done our chapters regarding counting our blessings in the morning, magic rock at night, and yesterday we paid gratitude to 3 of our closest relationships to get better results in our relations. Yes, Parulji. आप पढ़ सकते हो डे 4 से, पारुल जी. Day 4 magical health. So ये पिक्चर हमारे सामने है. I think ये पिक्चर इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसमें एक स्टेथोस्कोप भी दिखाया गया है, पानी का ग्लास भी है, एक बैग है, एंड अगेन वो स्पार्कलिंग एक एप्पल है. 1 apple a day keeps the doctor away, right? So that apple is also there, and that the magical sprinkle is all over these.
तो ये हमारे को मतलब हेल्थ इज समथिंग, जो अभी कोट सामने हमारे पास आएगा, दिस इज सो वेल रिटन. So let's read and find out what we can do in the area of health to maintain our good health. The greatest wealth is health. Virgil 70 BC to 19 BC, Roman poet. Health is the most precious thing in the life. पारुल जी, जहाँ पे आपको टिक मार्क दिखेगा ना, Yes, ma'am. आपको वहां आपको टिक मार्क दिख रहा है, दिस टिक Yes, मार्क, ma'am. Yes. Yes. तो आपको वहां रुकना है. Okay. थैंक यू. सो द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ. स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है. ये हमारे लिए बहुत, अभी हम जो लास्ट 2-3 साल में जो फेज से गुजरे हैं, वहां ये और एम्फसिस हो गया है कि अगर सेहत है, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो सब कुछ सही है, सब कुछ अपनी जगह फॉल कर जाता है. हमारे पास कितने पैसे होंगे, कितने ही रिलेशंस अच्छे होंगे, हर कुछ होगा, लेकिन अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है, हम अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे, एनर्जी नहीं फील कर रहे हैं, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता. सो द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ. ये अगर किसी के पास हेल्थ की पूंजी है, तो वो सबसे रिचेस्ट आदमी है. यस पारुल. Health is the most precious thing in life, and yet more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lost it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. There are an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better, and nothing else matter other than. Having our health back again. Health is the gift of life. सो यहाँ पर ये बोले है ना, he who enjoys good health is rich and he knows it not. हमें पता ही नहीं है कि अगर हमारी सेहत अच्छी है, we enjoy good health, तो हम कितने अमीर हैं, हमारे पास कौन सी धन दौलत आ गई है, वो शायद हमें पता ही नहीं है. एंड इट इज द प्रेशियस थिंग इन लाइफ. जिसके पास अगर हेल्थ है, तो वो सबसे बड़ी पूंजी है. और जब तक हमारा लाइफ में हेल्थ अच्छा चल रहा होता है ना, हम उसको हम कभी ध्यान जब हम यंग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, लिटिल ओल्डर वी गेट, मे बी टिल 30s, डू वी रियलाइज कि हमारे पास कितनी बड़ी नियामत है हेल्थ. जब कोई ब्रेकडाउन आना शुरू होता है हेल्थ में, धीरे धीरे कोई भी चीज में अगर हमें थकान फील होनी शुरू होती है, या फिर कोई हमारा ऑर्गन थोड़ा कम फंक्शन करना शुरू करता है, देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि हमारे पास क्या पहले था और अब क्या डिफरेंस हो गया है. डू वी ऑल अग्री टू दिस कि हम जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम उसके लिए सोचते भी नहीं है कि हमारे पास कितना बड़ा गिफ्ट है, हमारे पास कितनी बड़ी नियामतें हैं हमारे. और एक छोटा सा बोलते हैं ना, कोल्ड हो जाए, चाहे फ्लू हो, एक फीवर ही हो जाए, 101 बुखार के कारण हमें सोना पड़ जाए, तो हम कैसे चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ताकि वी स्टार्ट डूइंग व्हाट वी वांट टू डू. अगर हमें कुछ नहीं भी करना है, तो उस बिस्तर से हमें निकलना, वी रियली वांट टू गेट आउट ऑफ दैट बेड. ऐसे हर टाइम चाहेंगे कि यार मुझे 1 घंटा सोने मिल जाए. डोंट वी ऑल फील व्हेन वी आर रनिंग इन आवर लाइव्स कि यार मुझे बहुत आज मन कर रहा है सोने मिल जाए. लेकिन अगर आप बीमार होके सोते हो, तो वो कैसे आपको काटने को दौड़ता है. हाउ हैंडीकैप्ड यू फील, इजंट इट. एक छोटा सा कॉमन कोल्ड एंड फ्लू में हम कितने परेशान हो जाते हैं.
और जब तक हमारे बॉडी में ये सब नहीं था, जब तक हम बहुत अच्छे से हमारा बॉडी चल रहा था, सारे फंक्शंस अच्छे हो रहे थे, क्या हमने कभी ग्रैटिट्यूड किया? क्या कभी हमने इस बारे में कभी सोचा? आई थिंक वी ऑल सेल इन द सेम बोट कि हमने पहले, आज ये चैप्टर जब मैंने पहले 2 साल पहले जब करा, उसके पहले आई डिडंट इवन थिंक, ब्रेकडाउन आने के बाद भी जो अच्छे काम कर रहे थे उसके बारे में भी नहीं सोच रही थी। सिर्फ हम ज्यादा कंप्लेन करते हैं ना, आज एक बार पेट खराब हो गया तो हम यही सोचते रहते हैं, हाय मेरा पेट खराब हो गया, क्या उल्टा फुल्टा खाया था जिससे पेट खराब हो गया, उसके बारे में नहीं सोचते। या फिर इतने समय तक जबकि हमारा पेट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना हमारा साथ दे रहा था, शायद हम उसके बारे में नहीं सोचते। वो सर्दी जुकाम हो गया तो हम परेशान हो जाते हैं, रुमाल में छींक छींक कर परेशान हो जाते हैं, एंड वी स्टार्ट कर्सिंग आवरसेल्व्स कि क्या हो गया। didn't we all do this small complaints about our health? Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he and or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she will have, he or she has, will be taken from him or her. You may know of people who choose a healthy lifestyle or yet still lost their life. Giving thanks in Their return health. for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into the motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvement to your health happen right away. Little acne and pains, moles, scare and marks, or start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality and happiness. मैम दिख नहीं रही। Increase markedly. Yeah. As तो यहाँ पर द हेल्थ इज अ, ये हाईलाइटेड में लिखा हुआ है ना, द हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। व्हाट इज गिफ्ट? गिफ्ट तो वो तोहफा क्या होता है? क्या हम पैसे से खरीद सकते हैं तोहफा? अपने लिए खरीदेंगे तो पैसे से खरीद सकते हैं, किसी और को देंगे तो वो उसके लिए तो बिना पैसा, बिना कहीं से उसके लिए दिया गया है। That is a gift. So this is something which we receive and have been receiving each day आज तक हमारी जिंदगी में। तो ये भगवान की बहुत बड़ी नियामत है हमारे ऊपर कि हमें एक कंप्लीट बॉडी में उन्होंने पैदा किया। आई पे ग्रैटिट्यूड ईच डे कि मुझे जब पैदा किया था तो मेरे हर अंग सुरक्षित थे। आई हैड अ कंप्लीट बॉडी। इफ वी थिंक अराउंड अस, इतने सारे लोग हैं जिनमें कहीं ना कोई कमी रह गई होगी। हम तो बहुत खुश नसीब है कि हमारा पूरा कंप्लीट शरीर मिला है हमें। एंड इन एडिशन टू एवरीथिंग वी डू, आज हेल्दी रहने के लिए आप अच्छा खाना खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन रॉन्डा बर्न क्या बोल रही है? In addition to everything else we do to be healthy, gratitude will ensure, हमारा शुक्राना करना इंश्योर करेगा कि हमारा हेल्थ जो अभी है, जिस लेवल पे भी है, उससे और बेहतर होता जाएगा। एंड वी कंटिन्यू टू गेट दिस लाइफ लॉन्ग, हमारा हेल्थ बहुत अच्छा होगा। तो इन एडिशन टू व्हाट एवर वी आर डूइंग टू रिमेन हेल्दी, हमको जरूरत है कि हम शुक्राना में रहें। Whoever has gratitude for health, यहाँ उन्होंने वो लिखते हैं ना, जिसके पास भी कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। यहाँ समृद्ध, अबंडेंस किस चीज में आएगी हमारे पास? इन हेल्थ।
इफ वी आर गिविंग शुक्राना हेल्थ के लिए, अगर हम जितना, सपोज आज हमारे लाइफ में हेल्थ के रीजन में कहीं ना कहीं कोई ब्रेकडाउन है, तो जिस अंग हम, जो अंग में हम ब्रेकडाउन है उसको ना सोचकर जहां पर हम अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए अगर हम कंटिन्यूअस ग्रैटिट्यूड करते जाएं, इट विल इंश्योर दैट वी हैव अबंडेंस। एंड जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये तो हमारा बीज मंत्र है ना, दिस इज द मैजिक फॉर्मूला जो शुरू टाइम से हमारे लिए चलता आ रहा है। तो ग्रैटिट्यूड इज द बेस। ग्रैटिट्यूड, शुक्राने में रहना हमारे लिए इट्स नॉट अ चॉइस, इट इज द मंत्रा फॉर लाइफ। जैसे हमारा कोई भी और रिचुअल है लाइफ में, जो भी हम करते हैं दिनचर्या में, उसी तरह ग्रैटिट्यूड हैज टू बी वन अमंग ऑल ऑफ देम। ये हमारा हैबिट बन जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ 28 डेज जर्नी जो इस बार हम शुरू करे हैं। एंड कई बार हमने देखा है ना, बहुत हेल्दी लोग हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल है, ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, बहुत अच्छे, सुबह अपने नित नियम से टाइम से उठते हैं, टाइम से सो जाते हैं, ना दिन ना उनको उनको और कोई चीज की एडिक्शन है, फिर भी उनका हेल्थ कभी ना कभी कहीं ना कहीं कम हो जाता है, दे फॉल सिक। व्हाट मे बी द रीजन? शायद उन्होंने अपने हेल्थ के लिए उतना शुक्रगुजार नहीं रहे, शायद वो अपने जो उनके पास है, जितना कुछ हेल्थ है उनके पास, उसको मेंटेन करने के लिए, करंट स्टेटस जो है उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने शुक्राना नहीं दिया। गिविंग थैंक्स इन रिटर्न फॉर हेल्थ यू आर रिसीविंग इज वाइटल। देना, आपको मिल रहा है ना, आपको हेल्थ मिल रही है ना, आपको अच्छी सेहत मिल रही है ना, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा। हम अभी तक सीख चुके हैं ना कि कुछ पाने के लिए आपको देना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा। सो टू हैव गुड हेल्थ लाइफ लॉन्ग, पहले से ही हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दे। एंड दिस विल नॉट ओनली मेंटेन आवर हेल्थ, जो अभी का सिचुएशन है, जिस स्टेटस में भी आज हमारा शरीर है ना, उसको वहां नहीं रख के भी इससे भी ज्यादा मैजिक होना शुरू हो जाएगा। वी विल स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग। शायद हमारी बाल जो हमारे आज हमको लग रहे हैं ना कि हमारे बाल कम हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, या फिर बालों का रंग थोड़ा सा ग्रेइश होता जा रहा है, स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर द हेयर एट प्रेजेंट जो आपके पास है, जैसे भी हैं। फॉर द आईज, जो आईसाइट आज आपके पास है। हमारे शुक्राना जो आशमी मैम का जो ग्रुप है, उसमें कई सारी शेयरिंग्स ऐसे आई है कि उनका चश्मे का नंबर उतर गया, बाल आने शुरू हो गए। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो 15 साल से था, वो उन्होंने 3 महीने में उसको रिवर्स कर लिया। फ्रॉम द मैजिक प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ, इस ग्रैटिट्यूड की जर्नी में रहकर। सो ये जो मतलब ये है कि जो जैसा है उससे बेहतर होता जाएगा। दिस इज, आई मीन, इट हैज टू हैपन। छोटे मोटे पेन्स, छोटे मोटे एक्स, मोल्स, छोटे मोटी कट आ गया, कहीं पे कोई चोट लग गई, वो तो ऐसे डिसअपियर हो जाएगी। और आपकी एनर्जी लेवल, आपकी वाइटैलिटी, आपकी स्फूर्ति, इट विल हैव इट मार्केट डिफरेंस। आपको वो दिखेगा, उतना डिफरेंस आएगा। लोग आपको आके पूछेंगे यार तुम क्या कर रहे हो, वैसा डिफरेंस आपके पूरे लाइफ में, आपके पूरे हेल्थ में आएगा। ये क्लेम कर रही है। बस इनका यही शर्त है, प्रैक्टिस। Practice gratitude, make gratitude a mantra, a habit in your life. और कल हम जैसे फीलिंग्स चार्ट के बारे में बात कर रहे थे ना, अबव द लाइन वाले इमोशंस एंड बिलो द लाइन वाले इमोशंस। अगर हम स्लिप हो रहे हैं अपनी छोटे मोटे ब्रेकडाउन से हेल्थ के रीजन एरिया में, वही बालों को ग्रैटिट्यूड देने की बजाय रोज जब कंघी में बाल देखते हैं तो बहुत चिंता, बहुत डर, बहुत फिक्र होती है। when we are actually combing, we don't want to comb our hair कि इस चिंता में कि और बाल झड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे जहां हमें और डर और चिंता फिक्र होगी। बेस्ट थिंग इज स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव नाउ। आपकी लवली स्माइल, आई मीन पीपल से यू हैव गॉट अ लवली स्माइल, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। आपके चेहरे के वैल्यू को बढ़ा देता है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए। सो स्टेइंग अबव
जब ब्रेकडाउन आते हैं तो थोड़ा बहुत मन में चिंता या फिर थॉट आना शुरू हो जाता है. दिस इज व्हेन वी हैव टू रिमेम्बर टू शिफ्ट आवर एनर्जीज टू गो अबव द लाइन. Yes, Parul. As you will learn a later practice through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body, and all of it happen like magic. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. John Henry George, 1864 to 1923. Present Presbyterian preacher and writer. writer. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं ना, डेली प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, और आगे जो चैप्टर्स ये हेल्थ के ऊपर इन्होंने लिखा है, देयर आर 2 more chapters on health. So if we practice these chapters on health, she is claiming कि हमारा जो भी ब्रेकडाउन है हमारे लाइफ में वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, एंड वी कैन हैव अ बेटर आईसाइट, बेटर हियरिंग, हमारा सेंसरी ऑर्गन्स बेटर हो जाएगा, बॉडी के फंक्शंस बेटर हो जाएंगे, एंड इट विल ऑल हैपन लाइक मैजिक. एंड ग्रैटिट्यूड, ये जॉन हेनरी हमको क्या बता रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड इज अ वैक्सीन. जैसे हम वैक्सीन लेते हैं ना, पोलियो के लिए लेते हैं, हेपेटाइटिस के लिए लेते हैं, बचपन से लेके पता नहीं हमारे को देयर एवरी 6 monthly, आई थिंक पहले तो इनिशियली मंथली एंड देन 6 monthly till the age of 18 we have some of the other vaccines which we take to keep us protected from so many of the illnesses. तो ये अगर हम प्रैक्टिस करें तो इमेजिन करो, बिना कोई एक्स्ट्रा केमिकल हमारे अंदर गए हमें एक वैक्सीन मिलता है, एक एंटीसेप्टिक मिलता है. कोई भी घाव को भरने के लिए एंटीसेप्टिक चाहिए होता है ना, और कोई भी एंटीबायोटिक्स चाहिए होते हैं ना हमें, अगर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया तो वी टेक सम chemicals, some medicines to protect ourselves. ये gratitude वैसा काम, एक सुरक्षा कवच बनाएगा हमारे. Aren't we so glad कि मजा नहीं आ रहा सुन के कि अगर हम सिर्फ gratitude practice करें तो हम अपने आप को कितना मजबूत बना सकते हैं अंदर से. हमें दवाइयां चाहिए होंगी. We are not saying कि don't stop taking medicines. We are not saying कि डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. We are not saying कि लैब्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शायद उसकी जरूरत कम पड़ती जाएगी, बिकॉज हमारा शरीर अंदर से इतना मजबूत हो जाएगा. एंड इफ दिस इज सो सिंपल एंड कैन बी प्रैक्टिस. और इसमें क्या जाता है, कुछ समय, कुछ टाइम और कुछ याद, मतलब अपने आप को अवेयर रखना कि हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, कंप्लेन की जगह हम ग्रैटिट्यूड में हैं. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. इट्स लाइक इट विल टेक टाइम. ओवरनाइट कुछ भी नहीं हो भी सकता है, लेकिन people do take time to come into the practice. आपकी जितनी प्रैक्टिस उतना आपको मिलेगा. The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the थोड़ा degree, धीरे पारुल जी, थोड़ा सा धीरे. okay ma'am, the degree that you are not grateful in the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, deity of thoughts, and every other function of your body and mind is weakened. Being grateful for your health ensure that. पारुल जी एक बार आप टिक मार्क पे रुकिएगा प्लीज. वो टिक दिख रहा है ना आपको? Okay ma'am, sorry. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग ना, कि द डिग्री दैट यू आर ग्रेटफुल. इसमें डिग्री का मतलब कि हम कितना प्रैक्टिस करते हैं अपनी जिंदगी में, सिर्फ हेल्थ के एरिया में नहीं, हर एक एरिया में हम कितना ग्रेटफुल हैं. अगर हमने एक एरिया में कंप्लेन करी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम हेल्थ के एरिया में ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हैं, और लेकिन बाद में हम जाके अपने स्टाफ को मन भर के डांट रहे हैं या फिर किसी के लिए बहुत ज्यादा जज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? दूसरी एरिया में हम अपना खड्डा खोद रहे हैं. और एक खड्डे को भरने के लिए हमें how many gratitudes do we need? Anybody? 10. 10. So we know the 10. formula.
एक गड्ढा बनता है और उसको भरने के लिए 10 ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। हेल्थ की एरिया में हम भर भर के ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह जाकर अगर हम बिलो दी लाइन के इमोशंस में हर टाइम स्लिप हो जाएंगे तो इट विल मेक नो, आई मीन गड्ढे तो गड्ढे हैं, कहीं पर भी खोदो, ग्रैटिट्यूड तो ग्रैटिट्यूड है, कहीं पर भी करो। सो वी नीड टू बी इन ग्रैटिट्यूड इन ऑल द एस्पेक्ट्स। कहीं पे भी हम जीवन में रहे, किसी भी हाल में रहे, उसमें हमें ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। और हमारी जितनी शिद्दत, हमारा जितना प्रैक्टिस, उस मात्रा में हमें वापस दिया जाएगा। अगर हमारे हेल्थ में चैलेंजेस हैं, हमारे हेल्थ में ब्रेकडाउन्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमने ग्रैटिट्यूड में कमी रखी है, हमने टेकन फॉर ग्रांटेड किया है अपने हेल्थ को। दैट इज व्हाई देयर हैज बीन अ ब्रेकडाउन। एंड अगर हमारी एनर्जी लो है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम ग्रैटिट्यूड में नहीं है। When we are in gratitude, we will have clarity of thoughts. दिमाग अच्छा सोचेगा, आपको अच्छे आइडियाज आएंगे, आपके बॉडी के हर फंक्शन बहुत अच्छे से हो रहे होंगे, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो आपको बचाए रखता है, जो आपको प्रोटेक्टेड रखता है, वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, और वो स्ट्रांग रहते ही आपकी बॉडी सिक्योर रहेगी। सो isn't gratitude a very easy and in our hands? मतलब सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे बस में है ग्रैटिट्यूड करना। तो इट इज इन आवर हैंड्स टू इंश्योर कि हम अपना हेल्थ कैसे रखें। Being grateful for your health ensure that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time it eliminates its stress and the tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. You can see in the state of your health. Just stop there, Balaji. I think it is थोड़ा सा टिक मार्क ज्यादा ही छोटा हो गया। Thank you for understanding as tick mark thoda zyada chota hai. I'll keep my cursor wherever you have to stop. You can see my cursor? Yes. Yeah, thank you. So can we all have it in the chat ki kisko 7 years longer rehna hai? Who wants to live 7 more years? ये बोल रहे साइंस बता रही है, रिसर्च हैज शोन कि जो बंदा ग्रैटिट्यूड में रहता है, जो प्रैक्टिस करता है, वो दे हील फास्टर एंड दे लिव 7 years longer. And there is a village in Japan called Okinawa, जहाँ के लोग हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ, द फील गुड फैक्टर, जो उनकी इकिगाई है, इकिगाई इज द पर्पस ऑफ देयर लाइफ, जो उनको उसके तरफ बढ़ते हैं, उसके लिए काम करते हैं। एंड पीपल, उनकी एवरेज लाइफ स्पैन क्या है उस विलेज की, आपको पता है? शतक मारते हैं उन लोग, 100 के ऊपर जाती है उनकी लाइफ स्पैन। एंड दे आर अ लॉट ऑफ हैप्पी go lucky people. They practice gratitude, they work towards their goal, they have their purpose in their mind so clear. So that is how gratitude affects our lifespan. अगर हमारे बॉडी में, आप एक चीज नोटिस करते हो, जब आप टेंशन में हो, जब आप स्ट्रेस में हो, एक नर्वस एनर्जी फ्लो करती है आपके अंदर, एक अलग सी घबराहट, एक अलग सा एक थोड़ी गर्मी भी फील होने लग जाती है। गुस्सा आने से तो हम लोग हिलने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। क्या आप सबके साथ ऐसा होता है कि when we are not feeling nice, when we are envy करते वक्त भी, जलन होते वक्त भी हमारे अंदर अलग सी कुंठा, एक अलग सा वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। So research has shown that tension और stress, ये हमारे प्राणिक हीलिंग में भी बताया गया है कि सारे जो फिजिकल एलिमेंट्स जो पहले होते हैं ना, वो हमारे इमोशनल प्लेन में पहले आते हैं, वहां से वो मैनिफेस्ट होके हमारे फिजिकल बॉडी में आते हैं। तो जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो बहुत सारी बीमारियों का कारण है। एक छोटा सा, आज मेरा बच्चा स्कूल से लेट आया,
5 मिनट या 10 मिनट का स्ट्रेस आपको कितना बेचैन कर देता है। वो ऊपर तो आपको दिख रहा है कि आप बेचैन हो, लेकिन अंदर आपके बॉडी में कितना केमिकल चेंजेस वो लाता है, वी रियली डोंट नो। वो क्या क्या चीज को जाके टेंशन में डाल देता है, वी रियली डोंट नो। क्या क्या केमिकल्स उसमें उस वक्त हमारे बॉडी में एमिट हो रहे होते हैं उस स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, हमें नहीं समझ में आता। एंड दीज केमिकल्स जो रिलीज हो रहे होते हैं उस वक्त बॉडी में स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, वो ऑर्गन्स को जाके अफेक्ट करते हैं, हमारे फंक्शंस को जाके अफेक्ट करते हैं। सो इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा स्ट्रेस हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। इज इट वर्थ टेकिंग द स्ट्रेस एंड द टेंशन? आई नो पीपल विल से ये तो नेचुरल है। डॉक्टर्स भी आजकल बोलने लग गए स्ट्रेस एंड टेंशन इज तो नेचुरल। नई नई बीमारियों के नाम आजकल आ गए हैं। एक किसी को अगर बीमारियां समझ में नहीं आती ना कि आपको क्या हुआ है, दिस इज स्ट्रेस रिलेटेड। हैव वी ऑल हर्ड डॉक्टर्स सेइंग दैट कि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, तभी आपका पेट में आपको बाउल मूवमेंट आपका सही नहीं है, आपको लूज मोशंस हो जाते हैं क्योंकि आप स्ट्रेस में हो। Haven't doctors started saying that कि आपका lose motions is because of your stress, because of your tension? और आप realize करोगे आपका टेंशन वाला अगर कोई सिचुएशन है, या तो हेडेक हो जाता है, या लूज मोशंस हो जाते हैं, या आपकी भूख बंद हो जाती है। एग्जाम्स के पहले कैसे हम बच्चों के हमारा भूख बंद हो जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है। So this tension and stress works on our body, and it goes a long way in hampering our body. We need to manage and learn how to live above the line. Stress और tension क्या है? ये below the line वाले emotions है, ये हमें नीचे गड्ढे में ले जाने वाले emotions है। इंस्टेड जब स्ट्रेस और टेंशन हो, उस वक्त कोई ना कोई बहाना ढूंढकर ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए, किसी भी एक चीज के लिए शुक्र फील करना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ में उस वक्त क्या अच्छा है, हर एक के लाइफ में एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ तो अच्छा चल ही रहा होगा। से बाय बाय टू स्ट्रेस एंड टेंशन एंड स्टार्ट फीलिंग द ग्रैटिट्यूड कोई भी एक चीज के लिए, या अपने लिए एक कोई चीज मंत्र बना के रखिए कि मुझे इस म्यूजिक से बहुत खुशी मिलती है, तो आई विल स्टार्ट लिसनिंग टू दिस म्यूजिक, सो ये हमारा मूड अपलिफ्ट करेगा। You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is the lack of gratitude. All of that is about to change through, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. So right now, right here, हम अपनी अपनी जिंदगी में झांक कर देख सकते हैं कि हम हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं या नहीं करते हैं। अगर कहीं ब्रेकडाउन्स है, कुछ है, तो वी आर शॉर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। और अगर हम अपने एज से यंगर फील नहीं करते, रोज सुबह बिस्तर से उठने के लिए अगर एफर्ट चाहिए हमें, वो जिंदगी के लिए जील नहीं है, वी डोंट लुक फॉरवर्ड टू द डे, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। हर काम बस जिंदगी चल रही है, काट रहे हैं। कोई पूछे आप कैसे हैं, बस चल रहा है। अगर ये आंसर है आपका कि बस चल रहा है, कट रही है, निभ रही है, तो किसके आंसर है ये? जिसका कंट्रोल अपनी जिंदगी का खुद के हाथ में नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड गिव्स दैट कंट्रोल इन आवर हैंड्स। हम अपना हेल्थ, हम अपना मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, देयर आर सो मेनी हेल्थ ना, हम अपना हेल्थ को कैसे करें, कैसे मैनेज करें, वो अब हमारी मुट्ठी में है। एंड दिस इज ऑल गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line.
italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply, and the deeper you feel, the faster you will feel and see the amazing result in your body. So यहाँ अब हमारा आज का प्रैक्टिस शुरू होता है टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। रॉन्डा बर्न हमें एक एक पार्ट को महसूस करवाएंगी, फील करवाएंगी, ग्रैटिट्यूड दिलवाएंगी। आप जब वहां पे इटैलिसाइज जो सेंटेंस है जो लास्ट में, मैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल जस्ट रीड द पैरा एंड विद द पैरा आप अपने आप स्क्रीन पे पढ़िए या अपने बुक में पढ़िए एंड फील कीजिए उस पार्ट के लिए ग्रैटिट्यूड। वो पार्ट आपके कितने काम आता है, हर एक संभावना को अपने दिमाग में फील कीजिए, अपने मेंटली अपने आप को दोहराइए एंड लास्ट में डीपली ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। So from here I'll change the book to Hindi और पारुल जी ये वाला आगे के कुछ पैराग्राफ्स मैं पढ़ूंगी। I will let you know when you have to read again. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Think about your leg and feet. Wait. यहाँ से मैं पढ़ूंगी पारुल जी। हाँ, Okay, ma'am. थैंक यू। सो अब एक एक पैरा हम पढ़ेंगे। जिस जिस अंग के बारे में रॉन्डा बर्न बात कर रही हैं आप उन पे अपने हाथ को रखिएगा। जैसे पैरों के बारे में बात कर रही है तो जस्ट फील योर लेग्स एंड अपने आंखों को बंद करके जस्ट ट्राई टू फील थ्रू द एंटायर पैराग्राफ। अपने पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और आपकी कार तक चलकर जाने की आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क पर जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। आप अपने पैरों पे धीरे धीरे अपने हाथों से सहला के डीप फील के साथ, बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ, थैंक यू मेरे पैर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील कीजिए आपके पैर आपके कितने काम पूरे जीवन में आपको चलने का फ्रीडम दिया है, इंडिपेंडेंस दिया है आपको। एक दिन अगर पैर से आप ना चल पाए तो आपको कैसा फील होता है, ये एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई लेग्स, they make me walk, they take me everywhere I want. I'm so grateful. Thank you my legs, thank you. नेक्स्ट हम अपने हाथों का ग्रैटिट्यूड करेंगे। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने,
बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपको चीजें लाकर दें। कहें, मेरी भुजाओं और हाथों और अंगुलियों के लिए धन्यवाद। Feel the deep gratitude for your entire hand. आपके हाथों के लिए, आपकी कोहनियों के लिए, आपके पाम्स के लिए, अंगुलियों के लिए। Say thank you. Thank you to each joint in the hands. Thank you. Thank you आपके सुचारू रूप से काम करने के लिए, मुझे इतना इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। Thank you. Thank you for being so strong. Thank you. Thank you. Thank you. नेक्स्ट हम अपने सेंस ऑर्गन्स के लिए धन्यवाद करेंगे। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। Thank you for my taste buds, which gives me the pleasure of eating food. In this pandemic time, जब हमारा स्वाद चला गया था, तब हमें समझ आया था कि कितना बेस्वाद, कितनी बेरंगी दुनिया लगती थी। कोई भी खाने में कोई स्वाद न था। Now we know the importance of taste. कैसे हमें खट्टा, मीठा, तीखा, हर एक चीज का स्वाद पता चलता है। Thank you for the taste buds. Thank you for your vitality. Thank you. गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकड़ने की गंध, भोजन पकने की गंध, जाड़े के रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के दिन में मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। Thank you for the sense of smell that I have, the strong sense. I can smell, I can distinguish between two smells. दो परफ्यूम, चाहे वो सॉफ्ट है, माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है, मुझे मेरे इस सेंस ऑफ स्मेल से ही समझ में आता है। मेरी पसंद नापसंद पहचानने के लिए थैंक यू टू माय सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट we'll go to the sense of touch. यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती तो आपको कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क में जाने ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर द प्रेशियस सेंस ऑफ टच, जिससे मैं अपने प्रियजनों के टच को महसूस करती हूँ, मेरे बच्चे को महसूस करती हूँ, इतना प्यार महसूस करती हूँ। आई कैन फील द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड हॉट, रफ एंड स्मूथ। मैं हर एक चीज को महसूस कर पाती हूँ। आई एम सो grateful to the sense of touch. I'm so grateful. Thank you. अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तक पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने,
प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आपको सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बताती है। Thank you for my perfect vision, for the clarity with I can see everything. जिस तरीके से मैं पूरे दुनिया को निहार सकती हूँ, अपने प्रियजनों को देख सकती हूँ, अपने खाने की वस्तु को देख सकती हूँ, अपने चॉइस ऑफ कपड़ों को जो मैं पहनना चाहती हूँ उसे देख सकती हूँ, हर रंग को देख सकती हूँ। उसके लिए, इस नियामत के लिए भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, संगीत नहीं सुन सकते थे, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने प्रियजनों की बातें नहीं सुन सकते, या आप अपने आप आसपास की दुनिया की आवाज भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरे सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। Deep gratitude for the hearing power that I have, for the clarity of hearing that I have. Thank you to my entire ear, the system of the ear. जिस तरीके से आप आवाज पकड़कर ब्रेन तक ले जाकर मुझे वह सुनने में मदद करते हो, इस प्रणाली के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। वह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपके जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी और कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। Deep gratitude for the powerful, magnificent brain that we have. वो सुनहरा मन जो हमारे अंदर है, वो ब्रेन जो लाखों मैसेजेस हर एक पल पाकर उसको डिकोड करता है और हमें हमारा एक्शन बताता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन बताता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारा हर एक एक्शन तय करता है। So grateful. Thank you for your alertness. Thank you mind, thank you. उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचे जो आपको स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह से 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम करती हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो अपने शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उनके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। Deep gratitude to each and every cell in the body for their balance, for their harmony, for them working 24/7, 365 days a year. हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारा शरीर, हमारे अंग, हमारा हर एक सेल अंदर हमें नवीकरण, हमें नई बॉडी दे रहा होता है, हमें हील कर रहा होता है। Thank you to each and every organ in our body. Thank you. तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्री, तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में
जीवन को प्रभावित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। सो दिस इज दैट हार्ट। जब हमारा फीटस फॉर्म हो रहा होता है, सबसे पहले हार्ट बीट आता है, डेवलप होता है, वो हमारा हार्ट है। तहे दिल से धन्यवाद हमारे जीवन को इतने सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए, हमारे हर एक ऑर्गन इतना नियंत्रित रखने के लिए। Thank you, heart. We love you. We love you from the bottom of our hearts. Thank you, heart. Thank you. I think you can switch to English from there only. Just click on the tab. We are losing your voice. Your Shalini, will you change your internet? Break हो रहे। तो हाउ डिड एवरीवन फील? इट्स ऑलमोस्ट आज का एक्सरसाइज हमने कर लिया है। अगर आपने बहुत डीपली किया शालिनी के साथ साथ, तो वी हैव डन टुडेज एक्सरसाइज। तो कैन यू फील ये काम हमने पहले कभी किया है कि अपने शरीर के हर हिस्से के लिए टू फील सो डीपली ग्रेटफुल कि मतलब हम ये कि बचपन से, जब से हम पैदा हुए तब से हमारे हाथ पांव काम कर रहे हैं, हमारी आंखें काम कर रही है। डिड वी एवर से थैंक यू? एंड ये फॉर्मूला, चलो थैंक यू बोले नहीं बोले, ये फॉर्मूला तो पता ही नहीं था ना कि अगर हम थैंक यू बोलेंगे तो ये और अच्छे से काम करेंगे। हमें तो लगता था कि कोई चीज गड़बड़ है तो कंप्लेन करनी है, तभी तो डॉक्टर को जाके बताएंगे, सबको बताएंगे कि कंप्लेन करो, ये अच्छा नहीं है, मेरे घुटने दुख रहे हैं। राइट शालिनी, यू आर बैक? Yeah, I'm back. Yeah. Now can you hear me? Yeah, fine. Could you hear me till the completion of Yes, the yes, gratitude? totally. Yeah, that was fine. Just at the end it broke. Okay. So, Parulji, are you there? Yes, ma'am. हाँ, तो आप यहाँ से पढ़िए ना। Next, take a piece of paper. Okay. Next, take a piece of paper or a card and write on it in a bold letters, the gift of health is keeping me alive. Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home, most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the word you have written often. Today at least 4 separate occasions. When you see the word, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Being grateful for your health. Wait. पारुल जी रुकिएगा। So today हमारा ये आज का असाइनमेंट है। हमने अभी ड्यूरिंग द सेशन सारे बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रैटिट्यूड पे किया, एंड
आई मीन मेरे अंदर से डीप ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है, अंदर से एक अलग सी स्फूर्ति नजर आ रही है मुझे। आई एम फीलिंग सो गुड। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज वी नीड टू मेक अ कार्ड। हमें एक पीस ऑफ पेपर या कोई मोटे कार्ड पे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव ये लिख लेना है। हिंदी में हम लिखेंगे, हिंदी में क्या है इसका, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। अगर हिंदी में लिखना है तो हम लिखेंगे स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये हमको लिख लेना है, बोल्ड लेटर्स में लिख लीजिए। और ये आज हम जहां पर भी जाए ना, आज से लेके कल 4 बजे तक ये हमारा दिन रहेगा। कहीं पर भी जाए वहां इसे हम कहीं अपने सपोज लुकिंग मिरर पे, अपने ड्रेसिंग टेबल पे लगा ले, बाथरूम के मिरर पे लगा ले, किचन में लगा ले, ऑफिस में है तो आप अपने टेबल पे रख लो। वेर एवर यू सी इट ऑफन, आप जितनी बार इसे देखो, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव बोलो, फील करो, एंड अंदर तक अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए गिफ्ट, एक वो जो आपको गिफ्ट में दिया गया है, भगवान ने आपको जो ये शरीर दिया है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। सो एटलीस्ट 4 ओकेजन इफ नॉट मोर, एटलीस्ट दिन में 4 बार आज से लेके कल तक हमें ये हाथ में पकड़कर, हाथ में नहीं पकड़ना है तो सामने इसको जहां पर भी आपने रखा हुआ है उसे देखकर से इट आउट लाउड, फील विद इन यू, एंड you need to do it till tomorrow on 4 occasions. Yes, Parul ji. When you see the words नहीं यहाँ से। being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continue to get better with increasing energy and just for life. The gratitude we are used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracle like you have never seen before. So यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर हम बीइंग ग्रेटफुल को अपना एक मंत्र बना लेते हैं, ये इट विल इंश्योर कि हमारा हेल्थ बेटर से बेटर होता जाए, हमारी एनर्जी और इम्प्रूव होती जाए, हमें जीवन में और खुशियां और ज़ील मिले, हमें लाइफ के लिए और zest for life is like, आप you look forward to life, you look forward to do your work, you look forward to spend time with your family, you look forward to earn money। हर एक एरिया में आपको एक नई स्फूर्ति फील होगी। एंड अगर हम अपनी दवाइयां लेते वक्त, हियर दे हैव रिटन ना, इन कंजंक्शन विद द कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट्स, अगर हम आज से हम ये एक नियम बना ले, दवाई लेते वक्त भी दवाई को एक मिनट, नॉट इवन 1 मिनट, कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए आप हाथ में रखो एंड डीप ग्रैटिट्यूड दो उस दवाई को कि आपको वो परफेक्ट हेल्थ दे रहा है, वो आपके इतना काम आ रहा है कि धीरे धीरे आपको दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, एंड योर हेल्थ इज अमेजिंगली मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो ये प्रैक्टिस अगर हम मेडिसिन ट्रीटमेंट्स के साथ, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ, डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, अगर वो हम यूज करने लग जाए ना, टू बी इन ग्रैटिट्यूड, टू बी इन ऑ ऑफ द हेल्थ दैट वी हैव, तो बोल रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स जो होंगे ना, जो रिकवरी रेट्स होंगे, जो हीलिंग का टाइम लगेगा, वो हीलिंग का टाइम बहुत कम हो जाएगा, रिकवरी रेट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। सर्जरीज में जो रिकवरी रेट, अगर हमें लगता है कि हम हफ्ता भर में सर्जरी से रिकवर हो रहे हैं, विथ पेइंग ग्रैटिट्यूड वी माइट रिकवर इन 2-3 डेज, हमारे को वो एनर्जी लेवल मेंटेन हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिवोल्यूशन, क्या बोलते हैं, that word is getting stuck into my mouth now, revolutionized हो जाएगा। See, I am also stuck. Be grateful to your tongue. Yeah. Chalo, let's read through the magical practice for the chapter. Magic practice number 4, magical health. Number 1, repeat steps 1 of 3 magical practice. Magic practice number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Repeat your list. Say thank you. Reread your list. Reread your list.
Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, on a piece of paper or card, write the word, the gift of health is keeping me alive. Number 3, place the piece of paper with your written word where you know you will see it often today. Number 4, on at least 4 occasions, read the word very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold the magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. So our first practice and the fifth practice, count your blessings and the magic rock remains the same. 10 नियामतें हमें सुबह उठते उठते लिखनी है एंड रात को सोती वक्त जो दिन में बेस्ट चीज हुई उसके लिए ग्रैटिट्यूड बोल के सोना है। आज का हमारा प्रैक्टिस है कि हमें एक कार्ड बनाना है या एक पेपर पे लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, और इस कार्ड या पेपर को एक ऐसी जगह प्लेस करना है जहां आज से कल दोपहर 4 बजे तक हम इसको कई बार देख सकें। तो आप अपनी अपनी जगह, आप अपना अपना स्थान यू चूज फॉर योरसेल्फ वेयर यू लुक इनटू थिंग्स ऑफन, और एटलीस्ट 4 ओकेशंस पे इसको स्लोली, वेरी स्लोली आपको पढ़ना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इसको फील करना है और ये फील करना है कि भगवान का कितना प्रेशियस, कितना अनमोल गिफ्ट हमें मिला है इस हेल्थ के द्वारा। So that comes to the end of the chapter. Parulji, thank you so much for reading it beautifully. Thank you so much, each and every participant, for being there and listening to me. Thank you. Thank you, ma'am, for giving me opportunity. Anybody has any questions या फिर कोई doubt? Yes, ma'am, I have. Yes, please. If we have any, ma'am, if we have any problems on a particular area, then how should we say that sentence? If we have many? If you have any problem in a particular area of body, आज के then दिन how- आपको सिर्फ यही लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आज हम प्रॉब्लम्स के बारे में, अफर्मेशन या प्रॉब्लम्स के बारे में हमें जो हमारी कमी है उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। What is right in our body, what is going great in our body, जो भी ऑर्गन्स हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। उस जैसे जैसे हम इसके लिए ग्रैटिट्यूड बढ़ाते जाएंगे ना, आपको मैजिकली फील होगा कि आपकी जो एरियाज में ब्रेकडाउन है ना, वो धीरे 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 करके वो चेंज हो रहा है। इट माइट टेक सम टाइम बट इट विल ग्रेजुअली इम्प्रूव। I have a sharing in health area, लेकिन आज बहुत टाइम लग गया। नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा हेल्थ का, that day I will do my sharing. Okay, And ma'am. आज Thank के you, बाद ma'am. ना हम लोग कोई भी इशू को, लाइफ में कोई भी इश्यूज हो, वी आर नॉट कॉलिंग देम प्रॉब्लम्स. व्हाट इज द वर्ड? व्हाट डू वी कॉल देम? Breakdown. मेरे हेल्थ में Challenge. ब्रेकडाउन है, चैलेंज है. ओके, बिकॉज प्रॉब्लम इज अ नेगेटिव वर्ड. सो आज के बाद नो मोर प्रॉब्लम. कोई भी हो, हेल्थ में हो, रिलेशंस में हो, पैसे में हो, एंड वी डोंट इवन डिटेल. क्यों डिटेल करने का मतलब है कि वी आर गोइंग इनटू द डिटेल्स कि मेरे, जैसे अभी पूजा ने बहुत अच्छा किया, शी डिड नॉट मेंशन इन डिटेल मेरा क्या है, शी जस्ट सेड आई हैव अ प्रॉब्लम. सो जहां जरूरत है वहां डिटेल करेंगे, जहां जरूरत नहीं है, स्पेशली इन अ बिग ग्रुप, सबकी एनर्जीज डाउन हो जाती है when we speak in detail about कि मेरा ये था, मेरा वो था, इतना इश्यूज था. उसकी जरूरत जहां नहीं है, we do not speak, and that goes everywhere. आज के बाद no more phone calls कि मेरा तो आज सुबह से सर दुख रहा था, मैंने तो ये नहीं किया, कुछ कर ही नहीं पाई. No more of those phone calls. आज से बंद. And हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, we are talking, मतलब एक्चुअली दिन सुबह से सर दुख भी रहा होता है, आई डोंट टेल एनीबॉडी एट होम. बैठी अपना टैबलेट ली या अपना सर बाम लगाई, खूब बाम लगाते लगाते खूब ग्रैटिट्यूड की, एंड अपने आप इट गोज, बिलीव अस, इट रियली वर्क्स. बिकॉज ये फाइनली इट इज अ लॉ.
It is a universal law. It has to work. सरिता जी कैसे किस तरह से ग्रेटिट्यूड करेंगे, जैसे मान लीजिए है तो Sorry, I didn't get you. नहीं, She's जैसे asking सर दुख whether जैसे दुख रहा है सर तो वो दुख रहा है gratitude तो किस कैसे तरह करें? से ग्रेटिट्यूड करें? आप जब अच्छा था ना, वो सर आपके लिए कितना काम करता है, Yes. को फिर कि कितना काम करते हैं। आज वही तो फॉर्मूला शालिनी ने बताया ना, जो कुछ भी है जब वो अच्छा रहता है तो कितना आपके लिए काम करता है। उस समय उसके लिए अच्छा ठीक है, उस समय सर पे बहुत गुस्सा आ रहा है, यार ये तो दुखे ही जा रहे हैं, तो बी ग्रेटफुल फॉर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो अच्छे काम कर रहे हैं। यू कैन इवन डू दैट। जरूरी नहीं है उसी हिस्से को थैंक यू करे, जो भी बाकी के हिस्से, सबको बस ग्रेटिट्यूड में रहने से आपकी एनर्जीज अप रहेगी। सरिता जी, आई वांट क्लियरली बोले हैं मेडिसिन बंद नहीं करने हैं, नॉट कि मैं तो ग्रेटिट्यूड करूंगी, आज तो दवाई नहीं खाती हूँ। प्लीज टेक योर मेडिसिन। वो मेडिसिन में भी ग्रेटिट्यूड शालिनी ने बताया ना, उसमें भी ग्रेटिट्यूड डाल दीजिए। Sarita ji, can I share one thing? यस यस शैला प्लीज। No, this is Beena, Sarita ji. बीना जी। हाँ, सरिता जी, मैं थोड़े दिन पहले मैं गिर गई घर पे ही। चलते चलते गिर गई और मुझे नी में लगा, बहुत जोर से इतना लगा लेफ्ट नी में, तो मैं बैठ के आई थिंक नियरली 200 टाइम्स मैंने थैंक यू बोला। ये पूरा बॉडी मेरा फाइन, आई एम सो फाइन, माय नी इज सो फाइन, यू विल नॉट बिलीव, मुझे रात को पेन ही नहीं था। वाओ, This was a miracle Wow. for me also, क्योंकि मेरा थोड़ा आई एम लाइक वेट है मेरा, लेकिन मैं गिर गई, मतलब मैं सोची मेरा नी गया आज तो, लेकिन मैं बैठ के इतना ग्रेटिट्यूड बोला कि आई वॉज रियली सरप्राइज कि वेयर इज द पेन गॉन। दैट वाज माय शेयरिंग। ये यहाँ बैठ के ना हमें लेक्चर देना ना कि ऐसा होए तो ग्रेटिट्यूड कर लेना, बट एक्चुअली जब ब्रेकडाउन आता है उस समय याद करना कि हाँ ग्रेटिट्यूड करूं। वाओ बीना जी, दैट इज वाओ। उस समय तो वी विल फील, कोई बर्फ ला दो, कोई डॉक्टर को बुला दो, या डॉक्टर को पूछो, या कोई गोली दे दो, दैट इज ध्यान वहीं जाता है ना, बिकॉज इतने साल की वही ट्रेनिंग है। बट उस समय याद रख के ग्रेटिट्यूड करना, वाओ दैट इज यस, मोर देन 200, और दिल से इतनी दुआएं उस नी के लिए। आई वाज आल्सो रियली सरप्राइज के वेयर द पेन वेंट, इवन आई डोंट नो। वाओ। हमारी लाइफ में एक और इंस्टेंस आता है ना, जनरली हम लेडीज को जब पीरियड्स में पेन आता है हम कितना कंप्लेन करते हैं, क्रैम्प्स आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस हैज बीन सो डिफिकल्ट टाइम, ये 3-4 दिन कैसे निकलेंगे। और इमेजिन करिए पीरियड्स नहीं आए तो व्हाट इज द एक बिगर प्रॉब्लम है वो। आई मीन इमेजिन हम लोग कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए हम लोग बिना सोचे समझे जस्ट वी कंप्लेन। अगर भूख नहीं लगी तो कंप्लेन, भूख ज्यादा लग गई तो कंप्लेन, अगर पानी नहीं पिया तो कंप्लेन, टॉयलेट ज्यादा जाना पड़ गया तो कंप्लेन। डोंट वी ऑल डू दैट? राइट शालिनी, मैं बहुत, मेरे बहुत पेन होता था periods के time, and I used to complain a lot. Finally I had to lose my uterus. तो ये भी होता है, ये भी होता है। So we need to be just aware कि हम सोच रहे क्या है, बोल क्या रहे हैं, हम किस चीज के बारे में क्या कर रहे हैं। अवेयरनेस इज द की टू एवरीथिंग। ये बुक हमें इतना अवेयर बनाने की कोशिश करेगी कि आपको पकड़ पकड़ के लाएगी कि क्या सोच रहे हो, देखो देखो क्या सोच रहे हो, दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं कंप्लेन तो नहीं कर रहे हो ना, कहीं किसी के बारे में बुराई तो नहीं कर रहे हो ना, कहीं ईर्ष्या तो नहीं कर रहे हो ना। It is, I mean, this book is amazing when it comes to banging on our heads. Diya ji, you wanted to say something? Ma'am, I would like to share on the health. You can just, I will just show my fingers. There were many marks. I used to always say these marks don't go. These marks don't go.
And now from few days I was saying, yeah, they are disappearing, and they have disappeared. Wow. They are like just changing, and they are getting softer. So Wow. it was there, but I used to never think about it. But when my daughter just said that, Mama, your hands have become very rough, so I thought I should bring it in gratitude, and from there the journey started, and now it's like on its own. I've not done any cream, nothing at all, just gratitude, and they are quite softer. Thank you so much. Wow. 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 Gratitude is the cream. एक और फॉर्मूला मिल गया. Vaccine, antiseptic, antitoxin and a cream. सुमन जी, आपने रेज किया हुआ था हाथ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं भी यही बोलना चाह रही थी. पहले तो आप सबको हेलो हाय, काफी दिन बाद देख रही हूँ. और मैं वीडियो ऑन करके सेशन नहीं कर रही हूँ. मतलब टाइमिंग सेट नहीं हो रहा इसलिए. और मेरा शेयरिंग ये है कि मैं भी कुछ दिन पहले गिरी थी. गिरी मतलब बहुत ऐसे स्ट्रेट थी, पूरी सीधे पीछे चली गई. पता नहीं कैसे गिरी, कुछ नहीं मालूम. लेकिन मतलब इतना साउंड हुआ कि मम्मी पापा सब रूम से बाहर आ गए कि इतना साउंड हुआ था. लेकिन मैंने उन लोगों का मैं ठीक हूँ, और मैं थैंक यू करते जा रहे थे. आई एम ऑल राइट, थैंक यू करते करते मैंने 5 मिनट तक कहा कोई मत छू, मैं अपने आप से सेट होके उठूंगी. मैं उठी, खड़ी हुई, और मम्मी पापा ने रेस्ट के लिए कहा. मैंने कहा नहीं, रेस्ट नहीं करना है, मेरे को काम था. मैंने कहा करना है मेरे को. 2 मिनट उनके बाद बोलने से बैठी और फिर काम में लग गई. सच बोलती हूँ, मेरे को लगा रात कैसे होने वाली है पता नहीं, क्योंकि इतना बड़ा वजन लेके गिरी. लेकिन मेरा ग्रेटिट्यूड होल डे चला, तो मैं रात को बाहर आउटिंग पे भी निकल गई हस्बैंड के साथ. वाह. तब से मेरा हेल्थ में जब भी ऐसे भी चल ही रहा था, लेकिन आता है तो मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ. लेकिन उस दिन बहुत वर्क किया, क्योंकि मैं एक सेकंड के लिए भी नेगेटिविटी में नहीं गई कि मेरा कुछ हुआ होगा या कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम आएगी. ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं आया था. Wow. थैंक यू. आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया सब सिखाने के लिए. Thank you for practicing. आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेयरिंग के लिए. Thank you. Thank you. I would like to add one more thing. We were working with stem cell banking, so we used to say periods को monthly blessing, and actually you start saying it monthly blessing. Everything just I have observed from last 10 years. I never had a problem during my periods. Never ever. Wow. Not even a single day. So just monthly blessings, they are good for me. The harmonic changes are good for me. Everything is good for me. Grateful for what you have. Really. What you have class. Wow. Shaila, even you had raised your hand. You had something to share or ask or say. No. Wanted to show you my presence. That's it. सरिता जी says कि जब आप आते हो ना तो बता दिया करो. मैं बोली ठीक है. Thank you. So do we, in the present members, do we have anybody who has a birthday today or an anniversary? We had promised that we will, all of us will wish them. And it is, thank you for bearing with us that we forgot last 2-3 days. Do we have somebody with a birthday or an anniversary? Okay. If not, let's clap for ourselves. Clap for a minute. So Shaila, we are doing what you said. Shalini ji, वैसे तो every day is our birthday. I know. Every day we are born. Yes. So let's clap for ourselves. So that is 100 clapping. 100 clapping. Thank you. 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 Thank you.
May God's blessing be with us. May our health improve, our eyes improve, each and every sense organ improve. We are healthy. Each and every cell in our body is healthy. Thank you, universe, for the complete health. For the gift of health is keeping me alive. Thank you. एंड टुमारो सेशन ना संडे का जो अपना 20 मिनट का स्पेशल सेशन है, रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन. एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज, आई वाज गेटिंग सम क्वेश्चंस कि किसी को पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाने के लिए, जिसको नहीं पता है हम लोग ब्रीफली थोड़ा सा बता देंगे शुरू में कि पॉजिटिव कोई आपके चैलेंज है, उसके ऑल्टरनेट पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे बनाए. सो यू कैन कम विथ योर पर्सनल रिक्वायरमेंट. So we will like to handle your personal requirement कि आपकी क्या जरूरत है उसमें. Okay? Okay? अगर आप अपना affirmations कुछ बना के आना चाहते हैं तो we can do the correction as well. आप अपना जिस एरिया में बनाना चाहते हो आप बना के भी आ सकते हो affirmations. So we all can help each other correcting if there is any mistake in the affirmation. जिस भी एरिया में चैलेंज है, just try and make a positive affirmation for that. सबको थोड़ा आइडिया है पॉजिटिव अफर्मेशंस का? मैम ये सेम टाइम पे होगी क्या क्लास? हाँ क्लास सेम टाइम पे होगी क्या? हाँ, सेम टाइम पे 4 to 4:20 20 मिनट के लिए होगी कल. थैंक यू सो मच मैम. ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सरिता जी, शालिनी जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू so much, ma'am. God bless you with lots of happiness, abundance, and prosperity. Bye-bye. Thank you, Sarita ji. Thank you, Shalini ji. Love you both. Thank you so much.